Hello viewers, myself Muhammad Shaukat, Assistant Professor, Government Degree College, Thanamati. Today I am going to discuss with you the topic mean, median and mode. In this topic, I will discuss the concept of statistics, importance of statistics in the field of education, and I will also discuss that how can we calculate mean, median and mode through grouped and ungrouped data. So, first of all, we will discuss meaning of statistics. Actually, statistics is that which deals with the collection, classification, and tabulation of numerical facts as the basis for explanation, description, and comparison of phenomena. Statistics is employed in almost all the physical and social sciences. It has great importance in the field of psychology and education. It helps the teacher in finding out the IQ achievement and other characteristics of students' personality. The word statistics is derived from Latin word status or the word statista of the Italian language. Both these words means political status. Thus, in old times, the word statistics meant the political situation of the state. Gradually, the description of data in terms of number was known as statistics. आई मीन टू से दैट कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स जो है एजुकेशन की फील्ड के अंदर इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा आता है हम उसको टेबुलेट करते हैं. एक इजी फॉर्म में जो है हमारे पास कंक्रीट रिजल्ट आता है थ्रू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है टीचर क्लासरूम के अंदर जैसे डिफरेंट टाइप्स के चिल्ड्रन है, कोई गिफ्टेड है, कोई क्रिएटिव है, कोई स्लो लर्नर है, इन सब स्टूडेंट्स को कैटेगरिकली जो है इनको स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स के थ्रू जो है इनकी कैटेगरी बना सकता है और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज an important definition which has been given by Webster. Statistics are the classified facts representing the conditions of the people in a state, especially those facts which can be stated in numbers or in tables of numbers of any in tabular or classified arrangements. Then statistics in education. Why we use statistics in the field of education? As you all know that measurement and evaluation are essential part of teaching learning process. In this process, we obtain scores and then interpret these scores in order to take decisions. Statistics enable us to study these scores objectively. It makes the teaching learning process more efficient. Now the next one is importance of statistics in education. Education के अंदर statistics की क्या importance है, इसकी क्या value है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द डाटा इन सिस्टमैटिक मैनर. डाटा को हम जो है एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. चाहे वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हो, किसी भी फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो उसमें कोई भी किसी टाइप का भी डाटा है उसको हम सिस्टमैटिक वे में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Then it helps to understand unwisely and complex data by simplifying it. Then it helps to classify the data. With the help of statistics, we can classify the data. Then another importance of statistics in education is that it provides bases and techniques for making comparison. I mean to say that with the help of statistics, we can compare different types of activities. Then it helps to study the relationship between different phenomena. Then another importance is it helps to indicate the trend of behavior. Then it helps to formulate the hypothesis and test it. Suppose when we do any type of research, we make hypothesis, टेंटेटिव जनरलाइज करते हैं हम किसी भी चीज को, उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. देन इट हेल्प्स टू ड्रॉ रैशनल कंक्लूजन्स. देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन. जैसे मैंने आपको पहले ही पिछली स्लाइड में बताया मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि क्लासरूम के अंदर एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, बच्चे का आईक्यू लेवल जो है उसको देख सकता है with the help of achievement test, and there are many other also tests. Then quantification of information. Statistics के through
हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वांटिटी में जो है उसको मेमोराइज कर सकते हैं। देन समराइज द रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है उसको हम समराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन रिकॉर्ड कीपिंग हम किसी भी चीज को जो है लंबे समय तक उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की फील्ड के अंदर। देन इट इज यूज्ड इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में भी जो है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। Now the concept of mean, median and mode. What is mean, what is median and what is mode? Actually mean, median and mode are three kinds of averages. There are many averages in statistics, but these are, I think, the three most common and are certainly the three you are the most likely to encounter in your pre-statistics courses if the topic comes up at all. The mean is the average you are used to. जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि हम उसका एवरेज वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। when you add up all the numbers and then divide by the number of the numbers, उसको हम बोलते हैं मीन। then median is the middle value in the list of numbers. To find the median, your numbers have to be listed in numerical order first from smallest to largest. Then so you may have to rewrite your list before you can find the median. The mode is the value that occur most often. If no number is in the list is repeated, then there is no mode for the list. The last one is range. The range of a list, a number is just the difference between the largest and the smallest values. Briefly आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मीन जो है, मीन हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। मीडियन जो है सेंट्रल वैल्यू होती है जो भी नंबर्स आपको गिवन होते हैं, और मोड वो वैल्यू होती है जो बार बार अकर हो, फ्रीक्वेंटली अकर हो, उसको हम मोड कहते हैं। देन नेक्स्ट अब हम जो है इसमें देखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मीन थ्रू ग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एग्जांपल जैसे आपके सामने है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेटा बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड। इसमें आपको दो चीजें गिवन होंगी, फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जैसे आपको यहाँ दिया गया है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and so on, 30 to 34. Similarly, frequency is also given 2, 4, 5, 6, 3, and after we add all these numbers, we have 20. n is equal to 20. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दो चीजें तो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्लास इंटरवल हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लास इंटरवल भी आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। आपको मीन के अंदर सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है दैट इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक्स से। मिड पॉइंट को निकालने का तरीका ये है कि क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज हैं, जैसे टॉप पे आप यहां देख रहे हैं 30 to 34, आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, देन डिवाइड करना है 2 से। सपोज 30 to 34 है तो आपने इसको 30 plus 34 देन डिवाइडेड बाय 2, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, दैट इज मिड पॉइंट वैल्यू। सिमिलरली 25 और 29 है, आप इसको 25 plus 29 करेंगे, देन डिवाइड 2 करेंगे, यू विल गेट 27। सिमिलरली जो है नेक्स्ट जितनी भी क्लास इंटरवल की वैल्यू आप सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये नंबर आपको आपके सामने आएंगे। देन इसके अंदर एक ही स्टेप और है, दैट इज f into x। f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी विच इज ऑलरेडी गिवन, x जो आपने जस्ट कैलकुलेट किया दैट इज मिड पॉइंट। अब आपने fx मींस कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन विद द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट दैट इज x। सपोज 32 को आपने मल्टीप्लाई करना 2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आएगी 64। सिमिलरली 27 को मल्टीप्लाई करना 4 से तो आप को वैल्यू मिलेगी 108। सिमिलरली 25 मल्टीप्लाई 5 आपको यू विल गेट 110। जब आप इन सब को इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, लास्ट में आपने इन सब वैल्यूज को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, दैट इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 420। ये इन सब का सम आ गया। ये दो चीजें आपने मीन के क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड में करनी है।
उसके बाद आपने मीन का फार्मूला पुट करना है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। सिंपल समेशन ऑफ एक्स जो आपने ये ऐड ऑन किया, आपके पास है 420, उसको डिवाइड करोगे आप नंबर, वो भी आपको ऑलरेडी गिवन 20, 420 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 21, दैट इज आंसर। ये हो गया आपका मीन। नाउ नेक्स्ट वन इज मीडियन। मीडियन जो ग्रुप डाटा से आप कैलकुलेट करोगे, इसमें भी सिमिलरली आपको दोनों चीजें गिवन होगी, क्लास इंटरवल दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना है। इसमें जो एक नया स्टेप आ जाता है दैट इज CF। CF मींस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है ऐड ऑन, इकट्ठा करना किसी चीज को। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, इसको समझने की जरूरत है, which is one of the most important aspect in this question, that is median। आपको फ्रीक्वेंसी में सबसे बॉटम में जाना है और बॉटम में देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। सपोज इस फ्रीक्वेंसी में आपको बॉटम में दिया गया है 5, तो आपने 5 को एज इट इज उसके सामने लिख देना 5। सपोज यहाँ 0 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, व्हाटएवर, यू विल राइट द सेम वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दिस वैल्यू। आप इसके सामने वही लिखेंगे। देन आप ऐड ऑन करते जाएंगे 5 और 2 को, जब 5 और 2 को ऐड ऑन करोगे तो आपके पास 7 में आपको आएगा, तो आप 7 लिखोगे। सिमिलरली 7 और 3 को ऐड ऑन करेंगे तो आपको 10 मिल गया। 10 और 4 को ऐड ऑन करेंगे तो 14, 14 और 1 को करेंगे 15, 15 और 3 को करेंगे 18 एंड सो ऑन, यू विल गेट 20। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जो टॉप वैल्यू है वो और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर है वो सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 आ गया। ये इसमें पहला स्टेप है। उसके बाद आपको जो है इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन का फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम मीडियन में क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n स्टैंड फॉर नंबर और 2 जो फार्मूले में गिवन है। अब आप देखेंगे इसमें कि n हमारे पास क्या है 20 है। जब आपने 20 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आपको क्या मिला 10। अब ये 10 आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना कि कहाँ फॉल कर रहा है। सपोज ये 10 है तो यहाँ n/2 जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 10 आया, तो ये आपका जो है 10 यहाँ फॉल कर रहा है। सपोज यहाँ अगर 9 होता तो ये 9 से ऊपर 14 में फॉल करता। जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू है वही आपने देखनी। सपोज यहाँ ऑलरेडी 10 है तो इट मींस कि 10 यहाँ फॉल कर रहा है। देन आपको इसके बाद निकालना है L, इसकी लोअर लिमिट। तो जब आप लोअर लिमिट निकालोगे इसी लाइन में आप क्लास इंटरवल की वैल्यू देखोगे, 20 से 24 है तो जाहिर सी बात है 24 तो हायर अपर लिमिट है और 20 लोअर लिमिट है। और लोअर लिमिट निकालने का रूल ये है कि इसमें से भी हमने 0.5 जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है। जैसे 20 है तो 20 से भी आपने क्या करना है 0.5 रिड्यूस किया तो आपको क्या वैल्यू मिली 19.5। देन FP फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट मींस कि इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 3, ये आपका फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट आ जाएगा। देन CFB कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बिलो, कि जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको जहां है जो आपको 10 कैलकुलेट हुआ इसके एक नीचे, मतलब आपने एक वैल्यू नीचे देखना है दैट इज 7, ये आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बिलो आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि वैल्यूज को जो है फार्मूले के अंदर पुट अप करना है। जब आप वैल्यूज को फार्मूले में पुट करोगे, जैसे ये फार्मूला आपका L + n/2 - CFB/FP × I, तो ये सारी जब आप वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट 24.5, दैट इज योर मीडियन। इस तरीके से लास्ट में मोड आता है। तो मोड मैंने आपको पहले बात बताया कि फ्रीक्वेंटली अकर स्कोर जो है उसको मोड कहते हैं। जैसे ये सारे नंबर दिए गए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा 5 रिपीट हो रहा है, हेंस 5 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। आप 5 को आंसर दोगे कि ये मोड है। ग्रुप डाटा के लिए आपने क्या करना है, ग्रुप डाटा के लिए जो भी आपको दिया गया है उसमें से सबसे पहले तो आपने मीन को कैलकुलेट करना है, देन मीडियन को कैलकुलेट करना है। जो मीडियन का आंसर आएगा तो ये फार्मूला 3 × मीडियन, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है मीडियन के आंसर से और -2 × मीन, 2 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, मीन के साथ। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोड निकल जाएगा। तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। मीन में आपने सिंपली जो है मिड पॉइंट और समेशन ऑफ एक्स निकालना है, मीडियन में आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है और मोड तभी आपका कैलकुलेट होगा जब आप मीन और मीडियन दोनों निकालोगे। थैंक यू वेरी मच।